हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस फॉर फाइनल्स पे। तो आज मैंने सेमेस्टर 3 AC2 ब्रिटिश लिटरेचर का 9 मार्क्स वाले क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो देर ना करते हुए हम लोग जल्दी से क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी होने वाला है, तो दिल थाम के बैठिए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब येट्स द सेकेंड कमिंग इन रिलेशनशिप टू सेवरल वर्क्स इट हैज इंस्पायर्ड। Why has the second coming preceded in the modern imagination? So the answer is W.B. Yeats' poem The Second Coming 1919 stands as one of the most powerful literary responses to the chaos of the modern world. Written in the aftermath of World War I and during the height of the Irish War of Independence. The poem reflects a deep anxiety about the disintegration of traditional structures, political, spiritual and moral. Yet envisioned a world spiraling into disorder, a vision that has continued to echo through the decades and has inspired numerous modern works across literature, film, music and politics. So, इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। ओके, तो पोएम द सेकेंड कमिंग टू W.B. येट्स ने 1919 में लिखा था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद उस वक्त दुनिया में पॉलिटिकल, मोरल और स्पिरिचुअल क्राइसिस था। येट्स को लग रहा था कि दुनिया अपने ट्रेडिशंस और वैल्यूज को खो रही है। ये पोएम दुनिया के फ्यूचर को लेकर डीप एंजाइटी दिखाती है, जैसे सब कुछ बिगड़ रहा हो और एक नई और खतरनाक दुनिया आने वाली है। तो at the core of the poem is a symbolic representation of historical cycles. Yeats believed that history moves in 2000-year cycles and he saw the post-war era as the end of the Christian age and the beginning of something unknown and potentially terrifying. This is expressed in the poem's haunting lines. तो हिस्टोरिकल साइकिल का कॉन्सेप्ट ये है कि येट्स के हिसाब से हिस्ट्री 2000 साल के साइकिल में चलती है। क्रिश्चियन एज यानी जीसस के समय से लेकर आज तक का युग अब खत्म हो रहा है और एक नया युग, लेकिन शायद डेंजरस, आने वाला है। इस बात को येट्स ने पोएम की सबसे फेमस लाइन में कहा, थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड, मेरे अनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। मतलब सब कुछ बिखर रहा है, कोई भी सिस्टम, रिलीजियस, पॉलिटिकल कल्चर अब लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। So, numerous literary and pop cultural works have drawn inspiration from the Second Coming. The novel Things Fall Apart by Chinua Achebe borrows its title directly from Yeats' line. Achebe uses the poem's themes to explore the breakdown of traditional Lugbo society and British colonial rule. The novel powerfully mirrors Yeats' vision of societal fragmentation and the devastating effects of external forces on cultural identity. So, यही डिस्टिंग्रेटिंग सेंटर बन गया है मॉडर्न इमेजिनेशन का सिंबल। जब भी दुनिया में कोई क्राइसिस होता है, लोग इस लाइन को कोट करते हैं। ओके, कैसे दूसरी लिटरेरी वर्क्स इंस्पायर्ड हुए? तो चिनुआ अचेबे का नोवेल थिंग्स फॉल अपार्ट जो था, इसका टाइटल डायरेक्ट येट्स की लाइन से लिया गया है। अकीबा ने दिखाया कैसे ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ने नाइजीरियन सोसाइटी को तोड़ दिया, बिल्कुल येट्स की थिंग्स फॉल अपार्ट जैसे। ओके, सिमिलरली जॉन डाइडन्स नॉन फिक्शन कलेक्शन स्लाउचिंग टुवर्ड्स बेथलेहेम takes its name from Yeats' final line, and what rough beast its are come round at last, slouches towards Bethlehem to be born. Didion uses the poem's apocalyptic tone to capture the cultural and moral decline of 90s America. In this context, Yeats' vision of chaos becomes a lens through which modern readers interpret generation, unrest and existential crisis. So, जॉन डाइडियन स्लाउचिंग टुवर्ड्स बेथलेहेम टाइटल लिया गया येट्स की लाइन से। तो येट्स की ये लास्ट लाइन से लिया गया ये टाइटल, एंड व्हाट रफ बीस्ट इट्स आउट कम डाउन एट लास्ट स्लाउचेस टुवर्ड्स बेथलेहेम टू बी बोर्न। यहाँ डिडियन ने 1960s अमेरिका की मोरल डिक्लाइन को हाईलाइट किया, बिल्कुल येट्स के विजन जैसा एपोकैलिप्टिक चाउस। ओके, so even in cinema and television, Yeats' poem has resonated. Films such as Children of Men, Apocalypse Now, and even episodes of The Sopranos and The Simpsons have either quoted or alluded to the poem's imagery.
Its themes of collapse, rebirth, and spiritual upheaval find relevance in every era marked by war, uncertainty और transformation. So, सिनेमा, टीवी और पॉप कल्चर में इम्पैक्ट. तो पोयम की डार्क इमेजरी और सिंबोलिज्म ने फिल्म और शोज को भी इंस्पायर किया है. चिल्ड्रन ऑफ मैन, एपोकैलिप्स नाउ जैसे फिल्म्स, द सोप्रानोस, द सिम्पसन्स जैसे शोज, इन सब ने पोयम के कोर्स या रेफरेंस यूज किए हैं. जैसे जब स्टोरी में वर्ल्ड कोलैप्स, वार या आइडेंटिटी क्राइसिस दिखाया गया हो. ओके, तो 9 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको 5 से 6 पेज का लिखना होगा. ठीक है, तो घबराइएगा मत, बस आप समझिए और अपनी लैंग्वेज में एग्जाम में लिखिएगा. ओके, सो द लास्ट पैरा. Politically, the poem has been quoted during major historical events, including the war, 9/11, and even recent global crises like the COVID-19 pandemic. Political commentators have often used Yeats' lines to describe an unraveling world, one where old ideologies no longer offer comfort or solutions. तो पॉलिटिकल में भी येट्स की प्रेजेंस है. तो मेजर हिस्टोरिकल इवेंट जैसे कोल्ड वॉर, 9/11 और कोविड-19 के वक्त पॉलिटिशियंस और मीडिया येट्स की लाइंस का यूज करते हैं. लोग कहते हैं सेंटर कैन नॉट होल्ड या रफ बीच इज कमिंग जब दुनिया अनस्टेबल लगती है. सो नेक्स्ट पैरा है. द इंड्यूरिंग पावर ऑफ द सेकेंड कमिंग लाइन्स इन इट्स एम्बिग्यूटी एंड रिचनेस. It doesn't prescribe answers. Instead, it presents haunting questions. What is the rough beast? Is the evil or merely different? Is the end of one age necessarily the beginning of doom, or could it be a strange rebirth? पोयम इतनी टाइमलेस क्यों है? तो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है एम्बिग्यूटी, मतलब अस्पष्टता. ओके, अस्पष्टता जिसको बोलते हैं. तो ये क्लियर नहीं करता कि रफ बीस्ट क्या है. क्या वो एविल है? क्या वो एक नए युग का बर्थ है? क्या हमें ड्रामा चाहिए या एक्सेप्ट करना चाहिए? इस अनसर्टेनिटी के वजह से पोयम हर एरा में फिट बैठ जाती है, चाहे 1920 हो या 2001 हो, 2001 हो या 2020. ओके, तो अब कंक्लूजन. In conclusion, yet the second coming remains relevant because it speaks to a fundamental fear of losing control over society, identity, and the future. Its adaptability across cultures and time periods, and its ability to reflect political, social, and moral decay have made it a cornerstone of literary and cultural consciousness. As long as humanity experiences crisis, Yeats' terrifying prophecy will continue to echo, a poetic mirror to our darkest uncertainties. So, कंक्लूजन में हमें बताना है कि द सेकेंड कमिंग एक ऐसी पोयम है जो हमें हमारे डीपेस्ट फियर याद दिलाती है कि अगर सोसाइटी का स्ट्रक्चर टूट गया तो हम किस तरफ जा रहे हैं. येट्स ने सिर्फ एक पोयम नहीं लिखी बल्कि एक वार्निंग दी, एक मिरर जिसमें हर जनरेशन अपना क्राइसिस देख सकती है. इसीलिए द सेकेंड कमिंग अब भी लोगों के इमेजिनेशन में जिंदा है, लिटरेचर हो, पॉलिटिकल हो या पॉप कल्चर. ओके, सो अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं. सो द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द 7 स्टेजेस ऑफ अ पर्सन्स लाइफ, मेंशन ईच स्टेज विथ नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो आप लोग जरा ध्यान से ये सारे जो है इसका पैरा को समझिए और एग्जाम में अपने हिसाब से लिखिएगा. ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो मैंने लैंग्वेज लिखा है वही लैंग्वेज लिखना है. ठीक है, आप लोग अच्छे से समझिए और एग्जाम में अच्छे से लिखिएगा. ओके, और हाँ, 5 से 6 पेज भरने का कोशिश करिएगा और अगर चाहो तो पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो. ठीक है, पॉइंट वाइज लिखने से ज़्यादा आसानी होती है. ठीक है, और हाँ, लेफ्ट और राइट मार्जिन भी छोड़ देना. ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर्स मोनोलॉग ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज फाउंड इन हिज प्ले एज यू लाइक इट is one of the most famous poetic reflections on human life. In this powerful speech, the character Jacques compares life to a theatrical performance and all humans being to actors playing various roles. According to him, each person plays 7 roles or 7 ages throughout their lifetime. These age stages are not only physical transitions but also emotional and psychological shifts. So, all the world's a stage and all the men and women merely players. ये लाइन एक मेटाफर है. ओके,
शेक्सपियर कहते हैं कि दुनिया एक थिएटर है और हर इंसान एक एक्टर है। हर इंसान अपनी लाइफ में अलग अलग रोल प्ले करता है, जैसे स्टेज पे अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। They have their exist and their entrances, यानी लोग स्टेज लाइफ पर आते हैं और बर्थ जाते हैं, मतलब डेथ। हर किसी का एंट्री और एग्जिट फिक्स है। ओके, लेट एक्सप्लोर ईच स्टेज विथ इट्स नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक इंसान अपनी लाइफ में कई रोल्स प्ले करता है, टोटल 7 स्टेजेस, जिसे शेक्सपियर 7 एजेस कहते हैं। तो सबसे पहला है द इन्फेंट मतलब नाबालग। द फर्स्ट स्टेज इज दैट ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी हु इज कंप्लीटली डिपेंडेंट एंड ऑन अदर्स। Shakespeare describes the infant as nibbling and puking in the nurse's arms. The baby cries, vomits, and needs constant care. This stage reflects helplessness and innocence, where the child is unaware of the world and entirely controlled by instinct and care from others. तो सबसे पहले स्टेज है जब इंसान एक बेबी होता है। मिवलिंग मतलब रोना और पकिंग मतलब वोमिट करना। ये स्टेज पूरा हेल्पलेसनेस और इनोसेंस का है। बच्चा सब कुछ दूसरों पर डिपेंड होता है ना। सो द सेकेंड स्टेज इज दैट ऑफ अ रिलक्टेंट स्कूल गोइंग चाइल्ड। शेक्सपियर प्रेजेंट this boy as whining and unwilling, dragging his feet to school. He has a shiny morning face and carries his satchel, symbolizing early education. This stage represents the beginning of formal learning, discipline, and the early struggles of responsibility. The child is playful, curious, yet often resistant to structure. तो school boy स्कूल बॉय मतलब जो विद्यालय जाता है वो बालक। ओके, तो देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विथ हिज सैशल, तो एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनवाइलिंगली टू स्कूल। अब बच्चे स्कूल जाने लगा है लेकिन मन नहीं करता। अब बच्चे स्कूल जाने लगा है लेकिन मन नहीं करता। वाइनिंग मतलब शिकायत करना, सैचल मतलब स्कूल बैग। ओके, तो ये स्टेज रिप्रेजेंट करता है डिसिप्लिन की शुरुआत, लेकिन इंथुजियाज्म कम होता है। ओके, थर्ड है द लवर, प्रेमी युवक। So the third stage is filled with intense emotions and romantic desires. The young man, now a lover, sighs like a furnace and writes ballads for his beloved. This stage is marked by passion, idealism, and emotional highs and lows. The person is driven by love and imagination, often forgetting logic and reason. So, with a woeful ballad made to his mistress, eyebrow. So, युवक बन गया है और अब उसमें रोमांटिक इमोशंस जाग गए हैं। साइंग लाइक फर्नेस मतलब हर वक्त इमोशनल और पैशनेट रहना। वो लोग पोएम्स लिखता है अपनी लवर के लिए। ये स्टेज है इमोशंस और इमेजिनेशन का। So the fourth stage is the soldier. Next comes the stage of a bold and ambitious soldier. He seeks reputation and honor, even at the risk of death. Shakespeare described him as full of strange oaths, bearded like the pard, which shows his fiery attitude. This stage symbolizes bravery, aggression, quick temper, and a desire to make a mark in the world. It's about chasing success and personal identity. So, इस स्टेज में आदमी ब्रेव और अग्रेसिव हो जाता है। उसका गोल होता है नेम, फेम और रेपुटेशन। क्विक इंक्वायरर मतलब छोटी बात पे लड़ाई के लिए तैयार। ये स्टेज दिखाता है एम्बिशन, प्राइड और इम्पल्सिवनेस। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ स्टेज द जस्टिस। दिस स्टेज द स्टेज ऑफ maturity and wisdom. The man now becomes a judge or a senior member of society. He is full of wise saws and modern instances. He has gained knowledge from experience and now becomes rational, moral, and socially respected. His appearance changes too. A fair round belly with good capon lined, indicating comfort and status. तो न्यायाधीश या फिर एडवाइजर कह सकते हैं द जस्टिस को। तो अब आदमी मैच्योर हो चुका है। ये है समझदारी और स्टेबिलिटी का एज।
फेयर राउंड बेली मतलब कंफर्ट और सेटल्ड लाइफ। वाइज सॉस मतलब समझदारी भरी बातें। ये स्टेज रिप्रेजेंट करता है विजडम, रिस्पेक्ट और रेस्पॉन्सिबिलिटी को। सो द सेकेंड स्टेज इज द ओल्ड मैन, पैंटालून। पैंटालून मतलब बुढ़ापा। इन दिस स्टेज द मैन बिकम्स वीक एंड फॉरगेटफुल। हिज वंस स्ट्रॉन्ग बॉडी now bends and his voice becomes thin. Shakespeare humorously refers to him as a lean and slippered pantaloon. He wears glasses and is mocked for his shrunk physical frame. This stage shows decline in physical ability and mental sharpness, even as he becomes more depending again. तो एक आदमी जब वीक और डिपेंडेंट हो गया है, पैंटालून मतलब एक पुराना थोड़ा फनी बूढ़ा आदमी, उसकी बॉडी श्रिंक हो गई है, कपड़े भी फिट नहीं आते, वॉइस भी पतली हो जाती है। ये स्टेज है फिजिकल और मेंटल डिक्लाइन का। ओके, सो द लास्ट स्टेज, सेकेंड चाइल्डहुड, एक्सट्रीम ओल्ड एज। द फाइनल स्टेज इज अ रिटर्न टू चाइल्ड लाइक हेल्पलेसनेस। शेक्सपियर कॉल्ड इट सेकेंड चाइल्डलेसनेस एंड mere oblivion. The man loses memory, speech, taste and senses. Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. This stage marked the end of life where a person becomes totally dependent, much like an infant again and finally fades into death. तो अब हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे। शेक्सपियर 7 stages of life beautifully captured the cyclic nature of human existence. From dependency to independence and back to dependency. Each stage is marked by its own characteristics, emotions and roles, just like scenes in a play. Life, as Shakespeare suggests, is temporary and theatrical, and we are all actors performing until our final exit. शेक्सपियर कहते हैं कि जिंदगी एक ड्रामा है जहां हर कोई अपना पार्ट प्ले करता है और जैसे ही रोल खत्म होता है वो स्टेज यानी दुनिया से एग्जिट कर जाता है। इन 7 स्टेजेस में ही हमारे एंटायर लाइफ जर्नी कंप्लीट हो जाती है, इनोसेंस से विजडम तक और इंडिपेंडेंस से फिर से डिपेंडेंसी तक। तो ये 7 स्टेजेस आप लोग याद रखना और अपने माइंड से, अपने समझ से एग्जाम में लिखना। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे आपके 9 मार्क्स के क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में एकदम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय।